Hello everyone, this is a project of credit card fraud detection. This project is being presented by Vinita and Shubham Chandel from Merrick College. I am Shubham and let me introduce you to the topic and how to create a data model. So this question is every person in mind. What is credit card fraud? Credit card fraud is when someone uses your credit card or credit account to make a purchase you did not authorize. This activity can happen in different ways. If you lost your credit card or have it stolen, it can be used to make purchases or other transactions, either in person or online. So, this is the definition of the credit card fraud. And now, what credit card fraud detection does. The credit card fraud detection problem includes modeling past credit card transactions with the knowledge of the ones that turned out to be fraud. This model is then used to identify whether a new transaction is fraud or not. Our aim here is to detect maximum of the fraud transactions while minimizing the incorrect fraud classifications. And these are the some important terms we are used in the our project. um, let's see. First is a true positive and second is a false positive, true negative, false negative, accuracy, sensitivity, specificity, precision, confusion matrix, and these are the important terms we are using the our project. And now let me tell you about the data set. So we gathered the data from the Kaggle website. So these are the link of the site which we are download the dataset. And in the dataset it has 32 variables and 2 lakhs 84,807 observations. In this datasets we are used the class as the factor variable. So let's take a look at the dataset. So in this dataset, the first column is a serial number and second column is a time. These are the time of the every transactions, and V1, V2, V3, V4. These are the transactions, and these are the total 28 transactions V1 to V28. And in the second last column, the amount is the amount of the transactions. And in the last column is a class. These are the factor variable. In this, in the class, 0 denotes the legit transactions and 1 denotes the fraud transactions. And these are the sum values in the minus in the table every transactions. These are the encrypted transactions. Okay. And we are use the sum functions uh, for balancing the data set. First is a random oversampling, second is a random undersampling, third is a habit sampling, fourth is a smart method. So random oversampling duplicates examples from the minority class in the training dataset and can result in overfitting for some models. And random undersampling deletes examples from the majority class and can result in losing information invaluable to a model. And third is the habit sampling, it is a combination of the random oversampling and random undersampling. And last is a smart method. Smart synthesizes new examples for the minority class. In other words, we can say that smart is a creator uh, artificial values. Okay, and let's take a look at the model and try to understand it. So this is the interface of the RStudio, and this is the file name,
and this section is the coding part, and this is the console output part, and this is the environment data, and this is the diagram जहाँ पे plot हमारे show होंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे हम डाटा सेट, एंड ये हमने पाथ दिया है, सिलेक्ट करेंगे. ओके, सिलेक्ट करा, रन करा, और ये रन हो गया हमारा. ओके, एंड नाउ पाथ हमें बिल्कुल एक्यूरेट डालना पड़ेगा, तभी वो रन करेगा, ऐसे नहीं. ओके, जब तक एरो नहीं आता ना नीचे तब तक नहीं होगा. इसको साइड में कर देता हूँ ज़रा. एंड डाटा डाटा सेट को इंपोर्ट तो कर दिया है, बट डाटा रीड तो करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम डाटा को ऑब्जर्व करेंगे, एंड उसके लिए हम str कमांड यूज़ करेंगे. ओके, सो str क्रेडिट कार्ड, ये लिखा, रन करा, और पूरा डाटा आ गया हमारा. ये देखो, जो भी हमारा डाटा सेट में डाटा था वो पूरा रीड हो गया है, कॉलम वाइज जितना भी था हमारा. ये हमारे सब डाटा हो गया है. ये देखो, टाइम भी हमारे पास V1 V2 सब ट्रांजैक्शंस इसमें शो हो रही हैं. ओके, सो लास्ट में क्लास है हमारी. अब नाउ कन्वर्टिंग करेंगे हम क्लास को टू फैक्टर वेरिएबल. जो हमारी लास्ट की क्लास है उसको फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. सो ये कोड है, इसको रन करा, एंड टाइम रन हो गया. एंड अब समरी करेंगे हम डाटा सेट की. वो सेलेक्ट करा, रन करा, और समरी बन के आ जाएगी. जितने भी हमारे टेबल होंगे उनके कॉलम वाइज हमारी समरी शो हो जाएगी. ये देखो, ये हमारा शो हो रहा है इसमें पूरा, जितना भी हमारा अमाउंट का, क्लास का, और जितने भी ट्रांजैक्शन है, इन सब की समरी हमें शो हो रही है. ऊपर चलते हैं. ये देखो, ये हमारा पूरा जितना भी समरी है सब शो हो रही है हमें. नाउ काउंटिंग करेंगे हम, जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ है इसमें वो काउंट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए सम लिखेंगे, एंड डॉट एन है फाइल नेम. सेलेक्ट करा, रन करा, और ज़ीरो आ गया हमारा. तो मतलब इट मीन्स कोई भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है. तो डाटा सेट हमारा बिल्कुल क्लियर है. नाउ कैलकुलेट करेंगे हम जितना भी हमारा वो है लेजिट एंड फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स. और टेबल करा, सेलेक्ट करा, ये हमारे लेजिट्स आ गए 0 वाले, और ये 1 फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स हैं जितने भी हैं. नाउ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम. उसके लिए प्रॉप फंक्शन यूज़ करेंगे. ये करा, किस बेसिस पे करनी है हमें, क्लास के बेसिस पे करनी है. फाइल कौन सी, क्रेडिट कार्ड. ओके, और ये करा प्रॉप, और रन करा. ये देखो 99% हमारे वो हैं लेजिट. ओके, नाउ पाई चार्ट हम क्रिएट करेंगे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं. और सिलेक्ट करा हमने, ये हमारे लेबल हैं जो हमने लेजिट और फ्रॉड जो ले लिया है. उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट के लिए फंक्शन लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया. और उसके बाद हम परसेंटेज शो करने के लिए लेबल्स लेंगे. उसके बाद हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. और किस कलर में चाहिए, पिंक और वाइट में. पिंक में हमें लेजिट चाहिए, वाइट में रन करेंगे इसको. वाइट में हमें फ्रॉड चाहिए. रनिंग चल रही है. ओके, जस्ट वेट. ये देखो, लेट्स सी, ये आ गया पाई चार्ट. ठीक है, लेजिट हमारी कितनी, 99.83% और फ्रॉड 0.17%. ओके, ना अब हम कोई मॉडल नहीं है तो मॉडल प्रेडिक्ट करेंगे, मॉडल बनाएंगे इसका. सो हम प्रेडिक्ट करेंगे पहले जितने भी हमारे लेजिट ट्रांजेक्शन उनको प्रेडिक्ट करेंगे, है ना. तो हम प्रेडिक्ट करेंगे किस बेसिस पे, जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज है पहले उसको प्रेडिक्ट करेंगे, जो भी हमारे लेजिट हैं. उसके बाद हम फैक्टर के बेसिस पे फाइंड आउट प्रेडिक्ट करेंगे. सेलेक्ट करा, रन करा, ये भी हो गया रन. नाउ इंस्टॉल करेंगे पैकेज कैरेट. कैरेट हमारा मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, जो ट्री बनाएंगे हम उसके लिए. तो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर चुका मैं, तो लाइब्रेरी कैरेट इंस्टॉल करेंगे इसके लिए. ये रन करा, सो लोडिंग हो रही है. नो, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. ओके, सो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला ये लिखा है. तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स डाटा इजकल टू प्रेडिक्शंस, रेफरेंस इजकल टू क्रेडिट कार्ड
एंड क्लास। ओके, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन के आएगी। डाटा क्या है हमारा, प्रेडिक्शन है, और किसके बेसिस पे आएगी, क्रेडिट क्लास के बेसिस पे आएगी, जो क्रेडिट कार्ड में है हमारा क्लास। ओके, 0 1 के। सो प्रेडिक्शन हमारा ऊपर से आ रहा है, जो भी हमने लेजिट निकाले हैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज। ओके, सो ये है, ये हमारा हो चुका है। इसको हम रन करेंगे, ये रन करा और ये आ गया हमारा। ठीक है, आपको आउटपुट दिखाता हूँ उसकी। ये देखो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे बन के आ गई। रेफरेंस नीचे हैं और प्रेडिक्शंस 0 0 पे हमारे इतने लेजिट्स हैं और 0 1 पे हमारे इतने फ्रॉड हैं। सॉरी, और नीचे चलते हैं और ये सारे हमारे स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी जितने भी हैं हमारे, सब कुछ शो कर देगा इसमें। ओके, एंड ये हमारा हो गया। और अब हम मॉडल क्रिएट करेंगे जो हमारे पूरा उसका है, क्रेडिट कार्ड का जो हमारा डाटा सेट है उसका। उसके हम लाइब्रेरी पैकेज करेंगे हम DPL/R। तो रन करेंगे, रन हो गया। ओके, ये शो हो रहा है। सो नाउ set.seed1, इसको रन करा, ये रन हो गया। मैं आपको पहले बता देता हूँ set.seed1 ये क्यों यूज़ करा है हमने। set.seed1 इसलिए यूज़ करा है बिकॉज जब फ्रॉड केसेस काउंट होंगे तो कुछ डुप्लीकेट भी आ सकते हैं। जब उसको डुप्लीकेट मिलेगा तो वो फिर से स्टार्टिंग में आएगा, या कुछ मिसिंग होगा तो स्टार्टिंग में आएगा। तो उसको कुछ पता नहीं होगी कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने वैल्यू सेट कर रखी है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 कर रखी है हमने। तो हाँ, इसी यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमने set.seed1 कर दिया। ओके, एंड नाउ टेबल नो क्रेडिट कार्ड, हम इसका जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो हमारा लेजिट और फ्रॉड है, और उसके बाद लाइब्रेरी करेंगे इंस्टॉल ggplot। ओके, ये भी हमने रन कर लिया। ये हमारा इसके लिए ग्राफ के प्लॉट्स के लिए है, और ggplot। उसके बाद हम डाटा इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, ये फॉर्मूला लिखेंगे, रन करा, ये भी हो गया। चल रही है अभी, ये बन के आ जाएगा, आपको शो होगा लेफ्ट हैंड साइड में। जस्ट अ वेट, लेट्स सी। ये देखो, पूरा हमारा मॉडल बन के आ गया इसका। ओके, ये पूरा आ गया। सो नाउ हम ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्ट सेट हम क्रिएट करेंगे इसके लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। ओके, सो उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे पैकेज कैट टूल्स, और लाइब्रेरी कैट टूल्स को करेंगे, रन करा, एंड ये रन हो गया। और उसके बाद set.seed123 ये वही करा हमने, फिर से हमने सेट कर दी वैल्यू। और डाटा सैंपल हम किसके स्प्लिट करेंगे, 80 और 20 के परसेंट पे बेसिस पे स्प्लिट करेंगे, रन करा। और 80% हमारा ट्रेन डाटा होगा। ओके, जो हमारे लेजिट होगा। तो ये ट्रेन डाटा हमने ट्रू कर रखा है, ट्रू करा, तो उसको रन करा। तो जितनी भी ट्रू वैल्यूज होगी वो हमारी 80% की होगी। ओके, और जितनी भी हमारी फॉल्स होगी ट्रेन टेस्ट डाटा में फॉल्स कर रखा है ना, तो ये 20% मतलब रन करें इसको, ये भी हो गया रन। ओके, ये अब हमारे वो होंगे फ्रॉड्स केसेस होंगे। उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे हम ट्रेन डाटा सेट की, रन करा, ये हमारे डायमेंशंस आगे की लेजिट कितनी है, फ्रॉड कितनी है, 32। ओके, और उसके बाद हम टेस्ट डाटा के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, रन करा, ये हमारे डायमेंशंस आगे टेस्ट डाटा की। ओके, एंड नाउ हम बैलेंस करेंगे डाटा सेट को। अभी बैलेंस नहीं है हमारा डाटा सेट अच्छे से। ओके, सो बैलेंस करने के लिए हम फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, रैंडम ओवर सैम्पलिंग। ओके, तो रैंडम ओवर सैम्पलिंग यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे हम उसके लिए। तो पहले हम जितने भी हमारा 10 डाटा सेट है, इसका जितने भी हमारे जो हमारे लेजिट्स और फ्रॉड होंगे वो काउंट कर लेते हैं। ओके, ये करा सिलेक्ट, रन करा, ये हमारे आ गए, इतने हमारे ये रहे लेजिट है, इतने फ्रॉड है। ओके, सो हमारे लेजिट इतने हैं 227452। ओके, सो हमने एन लेजिट कर दिया, हमने ये वैल्यू साइन कर दी इसको। जो मैक्सिमम होती है वो हम रैंडम ओवर सैम्पलिंग में लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है। ओके, रन करा, ये आ गया, हमने इसको वैल्यू कर दिया, वेरिएबल को वैल्यू दे दी। उसके बाद
ये करा, न्यू वेरिएबल दे दिया, उसके बाद 50% के बेसिस पे करेंगे। उसके बाद एक और लिया हमने, ये फंक्शन बनाया, तो उसके बाद रन करा इसको। उसके बाद लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे हम रोज़, ओके। उसके बाद ओवर सैम्पलिंग का ये फॉर्मूला है, पूरा मेथड है कि क्लास है कि क्लास के बेसिस कौन सी हमारी पूरी क्लास को करेंगे। और उसके बाद हमारे पास डाटा है, डाटा हमारे पास कौन सा ट्रेन डाटा है, मेथड है, ओवर सैम्पलिंग है हमारा, ओके। सो ये सिलेक्ट करा हमने पूरा, उसका सीड भी दिया हमने, ये रन करा, ये रन हो गया, ओके। ये पूरा है, अभी रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो गया रन, ओके। तो ये पूरा कोड है इसका। तो नाउ जो हमारा ओवर सैम्पलिंग ये है हमारा रिज़ल्ट है, इसको हम ओवर सैम्पल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये करा सिलेक्ट एंड रन करेंगे। रन करने पे हमारा हो गया रन, ओके। सो अब फिर से हम ओवर सैम्पल जो क्रेडिट में हमारे जितने भी हमारे वो होंगे, रन कर लिया है, हमारे जो लेजिट और फ्रॉड होंगे वो शो हो जाएंगे हमें, ओके। ये आ गया हमारे पास, ये सेम आ रहा है, तो मतलब ये वैलिड नहीं है हमारा, क्योंकि वैल्यू सेम दे रहा है हमारे लेजिट में भी फ्रॉड में भी, तो बैलेंस नहीं हुआ हमारा अच्छे से, ठीक है। सो अब इसके लिए हम दूसरा इसके पहले हम इसका ग्राफ बना देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, इसको रन करा, ये चल रही है अभी प्रोसेसिंग, ओके। ये आ गया, देखो ये प्लॉट आ रहा है इसका, ओके। तो ये हमारा बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये सेम वैल्यूज दे रहे हैं हमें। तो नाउ नेक्स्ट मेथड वी आर यूजिंग द रैंडम अंडर सैम्पलिंग, ओके। एंड इसमें भी हम टेबल करके फाइंड आउट कर देंगे कि कितना हमारे पास लेजिट है और कितना फ्रॉड है, ओके। और रैंडम अंडर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम इसमें सबसे स्मॉल वैल्यूज़ पिक करते हैं, तो फ्रॉड केसेस के 394 है, ये सबसे स्मॉल है, हमने इसको लिया है, इसको रन करा, इसको एन फ्लोट बना दिया। उसके बाद न्यू फ्लोट रन करेंगे, जिसमें हम 50% के बेसिस पे करेंगे, और उसके बाद एन टोटल को रन करेंगे। और उसके बाद ये मेथड है, तो सेम ही है जैसे ऊपर है, बस इसमें मेथड चेंज हो जाएगा। जहाँ पर मेथड में ऊपर ओवर सैम्पलिंग लिखा था, ओवर लिखा था, इसमें अंडर लिखेंगे हम, बाकी सेम है एज इट है। मैं बताता हूँ, ये देखो मेथड इज इक्वल टू अंडर, ओके। और ये ऊपर से है सारा जो भी हमारा ट्रेन डाटा आ रहा है, एंड इसको रन करेंगे और ये आ गया, ओके। जो इसमें सीड हमने लिया है अंडर सैम्पलिंग में, सीड इसको 2019, और ओवर सैम्पलिंग में लिया, ओवर सैम्पलिंग में भी लिया था हमने 2019। सो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने ऊपर लिया था सेट डॉट सीड, और एक ये लिया सीड। सो इसमें डिफरेंस है, सेट डॉट सीड जो है वो वैल्यू मतलब सेट कर देता है, एक फिक्स पर्टिकुलर जगह पे पोजीशन पे सेट कर देगा, ओके। और इसमें जो हमने सीड लिया है, इसका मतलब है जब जो डुप्लीकेसी आएगी डाटा सेट में, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है, तो उसमें जो जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसमें ही सेट कर मतलब वैल्यूज देता जाएगा 2019, ओके। सो ताकि उसको कन्फ्यूज़न ना होए बाद में फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ ये रिपीट हो चुकी है। उसके बाद हम अंडर सैम्पल क्रेडिट को अंडर सैम्पलिंग रिजल्ट बना देंगे, वो भी डाटा का, ठीक है। इसको रन करेंगे और ये रन हो गया है। उसके बाद हम लेजिट और फ्रॉड फाइंड आउट कर लेंगे सैम्पल क्रेडिट में कि कितना हमारा हुआ है, ताकि हम बता सकें कि ये वैलिड है या नहीं मेथड। सो इसमें भी सेम आ रहा है हमारा। सो ये मेथड भी हमारे बैलेंसिंग के लिए बेस्ट नहीं है, तो उसके बाद हम इसका प्लॉट डायग्राम बना देंगे, रन करा। सो जस्ट अ वेट फ्यू मिनट, let's see, this is the plot diagram, okay. And now we are using the hybrid method, combination of the random oversampling and random undersampling method, okay. So
ये देखो। एंड नाउ इसमें हम ट्रेन डाटा का नंबर ऑफ रोज जितनी भी है वो ले लेंगे हम। ओके, इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको रन करा, रन हो गया। उसके बाद हम जितने भी फ्रैक्शन फॉर्मूला मतलब 50% के रेशियो में करेंगे, तो उसके बाद इसको रन करेंगे। ये भी हो गया हमारा रन। उसके बाद सैम्पलिंग रिजल्ट है, ये मेथड है पूरा जो हमारा हाइब्रिड मेथड है इसका। बस में मेथड में हम बहुत लिख देंगे, बाकी सेम मेथड है जैसे ऊपर हुआ था हमारा ओवर सैम्पलिंग एंड अंडर सैम्पलिंग में। ओके, इसको सेलेक्ट करा, रन करा। सो जस्ट वेट फ्यू मिनट, रन हो गया है। ओके, सो नाउ चला गया, नीचे चला गया कुछ ज़्यादा। उसके बाद हम ये हो गया। उसके बाद सैम्पल क्रेडिट जो है वो बना देंगे हम सैम्पलिंग रिजल्ट का, वो किसका, उसका जो डाटा है पूरा। ओके, ये सेट करा, रन करा, ये रन हो गया। एंड नाउ इसका हम जितने भी लेजिट फ्रॉड है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि बेस्ट है हमारे लिए या नहीं। इसको सेलेक्ट करा, ये नहीं हुआ, रन करा, ये आ गया। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये मेथड भी हमारे लिए बेस्ट नहीं है। उसके बाद हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि है या नहीं। नहीं, परसेंटेज में भी 0.1% का डिफरेंस है, तो ये बेस्ट नहीं है। ओके, तो उसके बाद इसका प्लॉट डायग्राम बनाएंगे। सेलेक्ट करा, रन करा, जस्ट वेट। इससे चलते हैं। एंड नाउ वी आर यूजिंग द स्मॉट मेथड। ओके, लेट्स सी, ये देखो, ये हमारा हाइब्रिड मेथड का प्लॉट डायग्राम आ गया, जो ये आया है। ओके, ये डायग्राम है इसका। सो उसके बाद स्मॉट मेथड हम यूज़ करेंगे। स्मॉट मेथड जो है हम आर्टिफिशियल वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड ये है, इसको यहाँ पर करता हूँ। उसके बाद हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे स्मॉट फैमिली, उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। सेलेक्ट करा, रन करा स्मॉट फैमिली की। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि टेबल डाटा में कितना हमारा लेजिट है, कितना प्रॉफिट है, लेजिट है और कितना फ्रॉड है। सेलेक्ट करा, रन कर दिया, और ये आ गया हमारे पास। एंड उसके बाद हम नंबर ऑफ फ्रॉड जो है स्मॉट मेथड में फाइंड आउट करेंगे कि कितने हो रहे हैं। ओके, ये रन करा, एंड उसके बाद ये हो गया। उसके बाद R0 = 0.6, मतलब 60 और 40 के रेशियो में हमें डाटा चाहिए अपना। ओके, उसके बाद ये कोई फॉर्मूला है कि इतने हमें वो चाहिए, इसका एन टाइम्स में चलेगा। ओके, इसकी ये हो गया। इसको जो हमारा ये है स्मॉट मेथड है, इसमें हमने -C और 1,32 लिखा है, और टारगेट हमने ट्रेन डाटा सेट को लिया है, और के जो हमारे पास कापा है K = 5। ओके, उसका रन करा, इसको रन जो है कर लिया है। ये मेथड है जो इसका बताएगा हमें कि कितना हमारा लेजिट और कितना प्रॉफिट आया, हमने यूज़ करा इसमें। एंड जस्ट वेट, रन हो गया है। उसके बाद हम क्रेडिट स्मॉट को जो है स्मॉट आउटपुट कर देंगे, मतलब स्मॉट आउटपुट को बस क्रेडिट स्मॉट कर देंगे। ये रन हो गया हमारा, सेलेक्ट करके दे। उसके बाद हम कॉलम्स जितने भी हमारे कॉलम्स हैं इसको भी रन कर रहा क्लास के बेसिस पे, वो हो गया रन, नीचे वाला भी हो गया। एंड उसके बाद लेजिट और ये फाइंड आउट कर देंगे और कितने हमारे हैं, ये भी हो गए। अभी देखो लेट्स सी, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें 22 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये सूट कर सकता है, बेस्ट हो सकता है। तो उसका परसेंटेज निकाला तो 60 और 40%, तो ये थोड़ा बेस्ट है। सो इसका हम प्लॉट डायग्राम करके देखते हैं कि कैसा बन के आ रहा है, ताकि क्लियर हो सके हमें। लेट्स सी, वेट करते हैं। हाँ, ये देखो, ये हमारा इसका प्लॉट डायग्राम है। ओके, एंड नाउ हमारा मॉडल पता लग गया, स्मॉट मेथड है, तो उसका मॉडल तैयार करेंगे हम, ट्रेनिंग मॉडल। उसके बाद हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। आर पार्ट की ये रन कर लिया है हमने, ये एरर दिखा रहा है, 1 मिनट। सेलेक्ट करा,
रन पे गए करा, ये रन हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी आर पार्ट डॉट प्लॉट, मतलब डिवाइड तो कर देगा, उसके बाद प्लॉट पे करना पड़ेगा पहले उसको, तो ये भी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। उसके बाद कार्ट मॉडल है, ये हम इसको भी रन कर दिया। उसके बाद आर पार्ट डॉट प्लॉट, ये तो वह है कि हम आर पार्ट क्लास को करेंगे, क्लास के बेसिस पे कि किसको करेंगे, क्रेडिट स्मॉट के, ओके, जितना भी हमारा क्रेडिट स्मॉट का है जो डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आर पार्ट डॉट प्लॉट, प्लॉट करेंगे उसको कार मॉडल एंड एक्स्ट्रा इज टू ज़ीरो, मतलब कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा रो नहीं है तो ये ज़ीरो है, तो एंड टाइप इज टू 5 एंड ट्विक इज टू 1.2। ट्विक जो हमारे पास स्पीड है कि किस स्पीड में होगा, इसको सेलेक्ट करा, रन करा एंड नाउ देखते हैं, लेट्स वेट। और उसके बाद प्रेडिक्टिंग करेंगे हम कि फ्रॉड क्लासेस कितनी है हमारे, तो प्रेडिक्ट करा हमने। और ये है कार्ट मॉडल है, उसका टेस्ट डाटा है हमारे पास, उसका टाइप है कौन सा, क्लास, ओके, इसके बेसिस पे करेंगे हम प्रेडिक्ट। ये देखो जैसे डिसीजन ट्री, ये डिसीजन ट्री बन के आ गया हमारे पास, ओके, ये हमारा स्मार्ट वाला डिसीजन ट्री है, हमारे पास बन के आ गया, और कार्ट मॉडल, ओके, एंड ये रहा। और उसके बाद हम इसको रन करेंगे, इसको भी करते हैं, प्रेडिक्ट करेंगे, वैल्यू हो गया रन ये। उसके बाद हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स जो है टेस्ट डाटा के बनाएंगे, लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे कैरेट, इसको रन करा, ये हो गया। एंड उसके बाद कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स लिखी हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू और किसकी, टेस्ट डाटा क्लास की, क्लासेस के बेसिस पे, ओके, सेलेक्ट करा, रन करा, ये रन हो गया, ओके। ये हमारे आ रहे हैं सारी वैल्यूज, सेंसिटिविटी भी आ रही है हमारे पास, डिटेक्शन रेट सब आ रहा है इसमें, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये देखो सब आ रहे हैं हमारे पास, एक्यूरेसी भी आ रही है 97% एंड उसके बाद प्रेडिक्शन भी है हमारे पास जो ऊपर निकाला था। उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे किसकी, क्रेडिट डाटा, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे हम अपना ट्रेनिंग मॉडल को क्रेडिट डाटा सेट में, ओके, इसको सेलेक्ट करा है और वही है प्रेडिक्ट करेंगे हम कि, और टाइप कौन सी क्लासेस के बेसिस करेंगे, इसको रन करा, जस्ट वेट, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी क्रिएट होकर आ जाएगी, इससे हमें पता लग जाएगा कितना हमारी एक्यूरेसी आ रही है प्रॉपर डाटा सेट में क्रेडिट करके, ओके, ये रन हो गया हमारा। एंड इसमें देखो ये आ रही है हमारी, यह है हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन के आ गई है, ओके। एंड उसके बाद नीचे करेंगे, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है हमारे, 0 पे इतनी है, 0 1 पे इतनी है, 1 0 पे इतनी है, लेजिट, ओके। एंड ये रहा हमारे पास पूरा जो भी हमारी वैल्यूज़ थी वो आ गई है, ओके। एंड उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे डाटा, ट्रेन डाटा जो साइड डाटा सेट है हमारा, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसको सेलेक्ट करा, रन करा है, ये भी हो गया हमारे पास। -1 ये जो लिखा है हमने, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ओके। आर पार डॉट प्लॉट कार्ट मॉडल ये लिखा है हमने, एक्स्ट्रा इक्वल टू 0, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, तो टाइप इक्वल टू 5 एंड ट्विक इक्वल टू 1.2, ये हमें स्पीड बता रहा है ट्विक, ओके। एंड ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हम फ्रॉड क्लासेस को प्रिडिक्ट करेंगे, ये नीचे रन हो गया, देखो ये आ गया, रन हो गया हमारा, बता रहा हूँ इसमें डिसीजन ट्री बन के आ गया हमारा, ये प्रॉपर जितना भी हमारा डाटा सेट है उसका, ओके। ये देखो जितने भी हमारे हैं, ये B14 भी है, B8 15 18 सब है इसमें। सो उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे फ्रॉड क्लासेस को, ओके। सो फ्रॉड क्लासेस को प्रेडिक्ट करेंगे किसकी, टेस्ट डाटा के, ओके। सो इसको सेलेक्ट करा, क्लासेस के बेसिस पे करेंगे हम, रन करा, रन हो गया है। उसके बाद लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे कैरेट, सेलेक्ट करा, रन करा, ये हो गया। एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करा, रन करा, एंड जस्ट वेट, ये हो गया। हम ट्रेनिंग मॉडल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। सो ये हमारे आ गया, देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 99.93%, 99 पॉइंट,
मतलब बहुत एक्यूरेसी है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। ओके, सेंसिटिविटी भी हमारे पास इतनी है 99। सो ये हमने ट्रेन कर दिया है मॉडल को, ट्रेन डाटा टेस्ट डाटा पे कर दिया इम्प्लीमेंट। ओके, अब उसके बाद प्रेडिक्ट करेंगे हम जितने भी क्रेडिट कार्ड का डाटा सेट है उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्रेडिक्ट करेंगे हम कार्ड मॉडल, मतलब पूरे क्रेडिट कार्ड को जो भी है, पहली रो को छोड़ के, मतलब -1 जो लिखा है क्रेडिट कार्ड -1, इसको छोड़ के पहले कॉलम को छोड़ के उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे पूरे की। ये रन करा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है जिसमें भी ट्रांजेक्शन हुई थी। तो 99 पॉइंट ये बता रहा है इसमें। ओके, ये देखो इसमें भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 99.93 है। एंड उसके बाद विदाउट स्मॉट मेथड करेंगे तो डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे हम। ओके, विदाउट स्मॉट। ओके, उसके बाद सेलेक्ट करा, ये रन करा कार्ड मॉडल डॉट, ये देखते हैं एक बार इसका ये कैसा आ रहा है। ट्रेन डाटा का हमारा ये ट्रेन डाटा का आ गया पूरा। ओके, उसके बाद हम आर पार डॉट जो प्लॉट है इसमें भी हम जो हमारा कार्ड मॉडल है इसको रन करेंगे। ये रन हो गया है। ओके, ये देखते हैं क्या आउटपुट आती है इसकी। जस्ट वेट, रन होने दो इसको। ये कार्ड मॉडल है एंड दिस इज़ द, ये प्लॉट कर रहे हैं हम। ओके, जो हमारा ट्रेन डाटा है उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक तरह से प्लॉट कर रहे हैं। ये आ गया हमारा पूरा डिसीजन ट्री बन के। ओके, ट्रेन डाटा का ये देखो। नाउ हम जो प्रिडिक्ट करेंगे फ्रॉड क्लासेस जितने भी हमारी हैं, फ्रॉड हुई हैं और टेस्ट डाटा में जितनी हुई हैं। ओके, ये हमने सेलेक्ट करा इसको, ऊपर गए, रन करा, रन हो गया। उसके बाद हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे कैरेट। ओके, इसको सेलेक्ट करा, रन करा, रन हो गया। उसके बाद हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जो हमने प्रेडिक्शन की वैल्यू की। ओके, टेस्ट डाटा की ये कर दिया हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। टेस्ट डाटा की भी हमारे पास देखो 99 पॉइंट कितने आ रही है, 9। तो ये इम्प्लीमेंट करता है, मतलब सबसे अच्छा मॉडल है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है सब पे, एक्यूरेसी बहुत अच्छी दे रहा है। और इसका प्रेडिक्ट करेंगे हम वैल्यू को, ये वाला कार्ट मॉडल वाला कार्ट टाइप में। ये भी हो गया। उसके बाद हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे हम जो पूरे उसकी है, उस पर जो पूरा डाटा सेट है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें भी हमारी एक्यूरेसी 99.9 कुछ आ रही है, सेंसिटिविटी 9। ओके, सो ये भी हमारे लिए बेस्ट है। ये देखो ऊपर 99.9 ये आ रही है। ठीक है, ये ऊपर हमारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और ऊपर भी हमारी 99.9% एक्यूरेसी आई है जो हमने टेस्ट डाटा पे इम्प्लीमेंट करी थी। एंड उसके बाद इसकी भी एक्यूरेसी, हाँ ये रही देखो एक्यूरेसी। ओके, सेंसिटिविटी भी सेम है इनकी। सो ये बेस्ट है मॉडल। ओके, एंड मॉडल हमारा रेडी है। सो विनीता विल कंटिन्यू द लाइव इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। Hi, I am Vinita, and since you have been through the modeling part, which was explained by Shubham, I would like to continue with the UI part. Let me recap you that you have performed decision tree modeling while building your model, and while building the UI, I would like to perform XGBoost algorithm. Since our project is designed in R language, the UI will be designed within R Shiny. So, while beginning with the UI, the most important algorithm which will be used within this project is XGBoost. तो XGBoost अब तक का सबसे लेटेस्ट एल्गोरिदम है फॉर मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन। इसका यूज हम लोगों ने हमारे फ्रॉड प्रेडिक्शन के लिए किया है। XGBoost is a boosting algorithm. Boosting basically means कि it boosts up the accuracy of whatever model you are performing. So XGBoost is an optimized distributed gradient boosting library. It provides parallel computing, regularizations, enable cross-verification, missing values, flexibility, availability, save and reload, tree pruning, which makes it above all other algorithms, which makes it more accurate and more easy to use while performing machine learning or data mining. So how does XGBoost work? XGBoost belongs to a family of boosting algorithms that converts basically weak learners into strong learners. A weak learning is the one
which is slightly better than random guessing. What basically this means is कि हम किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अब तक जब भी यूज करके आए हैं वो हमेशा रैंडम वैल्यूज को गेस करता है, बट XGBoost उन वीक लर्नर एल्गोरिथम्स जो रैंडमली वैल्यूज गेस कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में चेंज करता है. बेसिकली ये सीक्वेंस वाइज काम करता है, जहाँ पे पिछले ट्री से निकली हुई प्रेडिक्शन यूज करके हमारा नेक्स्ट नोड या उस ट्री का नेक्स्ट फेज डिजाइन होता है. दैट इज इट्स बूस्टिंग एक्सप्लेन्स. That is, boosting is a sequential process. Trees are grown using the information from a previously grown tree one after the other. वो अपने पिछले grown tree को regularly use करता रहता है ताकि उसको उसके next tree की value predict automatically हो सके और वो उसी procedure को follow कर सके, which boosts its accuracy. So, what are the parameters which are utilized within the XGBoost? It is n rounds. N rounds means कि उसने कितने number of iterations perform करने या फिर हमारे tree की growth कितनी जाने वाली है. ETA हमारा learning rate होता है कि हमारा जो भी algorithm है वो किस speed से learn कर रहा है. गामा हमारा regularization और overfitting को prevent करता है. Max depth का मतलब है सबसे ज्यादा depth of any tree. जो भी हमारा डिसीजन ट्री क्रिएट हो रहा है उसकी सबसे ज्यादा डेप्थ कितनी होगी. मिन चाइल्ड वेट, ये एक ऐसा लीफ नोड होता है जो कि अगर मिनिमम मिन चाइल्ड वेट से कम होता है तो हमारी ट्री की स्प्लिटिंग स्टॉप हो जाती है और वहां पे हमारा एंड हो जाता है डिसीजन ट्री. सब सैंपल इज द नंबर ऑफ सैंपल्स. जितने भी हम सैंपल्स अपने ऑब्जर्वेशन से एक डिसीजन ट्री को बिल्ड अप करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी सब सैंपल वैल्यूज होती हैं. कॉल सैंपल बाय ट्री जो है वो वेरिएबल्स होते हैं जितने भी हम हमारे ट्री को प्रोवाइड करते हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट द UI एंड आई विल टेल यू रेस्ट ऑफ द पार्ट of the project and its file about the UI within this video only. So this is the practical part of the UI. The UI of our Shiny app contains two main files, that is the UI and the server. All the interface work is performed within the UI and the server contains the main code of the file. So we look at this global R. ये global R वो फाइल है जो हमारी सारे पेजेस पे काम करेगी. Means it is a kind of main page of our project. इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है. ShinyJS, ReadR, MAGritter, DPLYR, XGBoost, DT, PROC, RPart, rpart.plot, Caret, E1071 और string.i. इसके बाद हमने इसमें sources helpers.r यूज किया है. helpers.r हमारी वो फाइल है जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया है कि हमारे बटन्स किस पोजीशन पे किस टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे. helpers.r के अंदर हमने with busy indicator UI फंक्शन का यूज किया है. with busy indicator UI is basically a function which indicates that the server or the UI at that particular time is busy because of that particular button pressed or because of an error caused because of that particular action. Thus, we have defined here function button. Whenever a button will be used, with busy indicator UI will be called. So here we have given dev span. All the HTML tags are performed within the form of functions in our Shiny. We have a button which has loading container. Basically, we are having bootstrap here, and then we use a hidden tag for showing button errors. For all the errors, जितने भी errors हैं उसमें हमारी bootstrap के लिए button error की classes को use किया जाएगा. And if we get a particular button nicely, हमारा loading indicator या हमारी जो भी loading GIF या image जो भी हमने लगाई हुई है वो call हो जाएगी और डाटा फाउंड होते ही इट विल लोड इटसेल्फ. बेसिकली ये हमारी helpers.r फाइल है. उसके बाद फिर हमने हमारे मैक्सिमम साइज, क्योंकि हमारे UI में वी हैव प्रोवाइडेड एन ऑप्शन कि आइदर यू कैन चूज द इनबिल्ट डेटा सेट ऑफ द प्रोजेक्ट और यू कैन इंस्टॉल योर ओन डेटा सेट ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म योर मॉडल बिल्डिंग. Thus, तो आप अपनी फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हो. तो here it denotes the maximum size of the project
of the project dataset you can install within our UI. So we have the default dataset where the name Kaggle data, since we have used dataset from Kaggle only. Here we have column names from the Kaggle dataset. We have defined the total number of rows within the Kaggle data. We have defined that how to define the Kaggle data ID. We have taken first row till the end of the rows within the Kaggle data. And we have total 3 pages within our UI. So this is how helpers.r indicates about the buttons. Global.r indicates the main page of our project. We are done with these 2 files. Now we come up with the navpage.r. Navpage.r is basically that file which indicates navigations. इस पेज के अंदर हम लोगों ने हमारा lapply फंक्शन यूज किया है ताकि वो हर एक पर्टिकुलर नेविगेशन के लिए इंडिकेट कर पाए. सपोज इफ यू वांट टू गेट नेविगेटेड टू फर्स्ट पेज, व्हेन यू प्रेस अ पर्टिकुलर बटन इट विल detect itself using the lapply function that which page navigation you want to go on. अगर आप फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हो तो पेज मॉड्यूल आई डिनोट्स कि आप उस पर्टिकुलर पेज पे जा रहे हो बाय प्रेसिंग बटन वंस. Observe event is basically used for toggling the data. तो इस फंक्शन को हमने यूज किया, हमने हमारा टॉगल किया है एक प्रीवियस बटन पे. क्योंकि पेज 1 पे जब आप होते हो तो आपको प्रीवियस बटन अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि यू आर ऑलरेडी ऑन द पेज 1. अगर आप सेकंड पेज पे होते हो तो आपके पास प्रीवियस बटन अलाउड होगा, नेक्स्ट बटन अलाउड होगा. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस बटन की आईडी दी है. उसके बाद फिर हमने उसकी डायरेक्शंस को बताया है कि आर पे जो भी होगा वो पेज के डायरेक्शन भी शो करेगा, वेदर नेक्स्ट एरो टुवर्ड्स राइट एंड प्रीवियस एरो टुवर्ड्स लेफ्ट. So then we have observe event. This function also is used to toggle the data. If we select the page as 2 तो हमारे पास previous button और next button दोनों आएंगे, और अगर हम पेज 3 को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन और इसके साथ साथ एक फिनिश बटन भी आएगा. Now we toggle the data for page 1 using observe event. Here we upload a file. Since मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी खुद की फाइल भी अपलोड कर सकते हो और हमारा इनबिल्ट डेटा सेट भी यूज कर सकते हो. दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम टेलिंग यू कि आप पेज नंबर 1 पे अपनी खुद की फाइल अपलोड कर सकते हो. और वैलिडेशन हमने लगाई है कि वो फाइल जो है वो CSV फाइल होनी चाहिए और उसके अंदर एक क्लास फंक्शन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन होगी ऑफ आवर प्रोजेक्ट. ओके, देन इफ वी चूज Kaggle dataset as input तो वो हमारा इनबिल्ट डेटा सेट उठाएगा फॉर परफॉर्मिंग दिस मॉडल बिल्डिंग प्रोजेक्ट ओवर द UI. इसके बाद फिर हम लोगों का पेज 2 के ऊपर हम लोगों ने शो किया है कि यू हैव एन ऑप्शन. या तो आप अपने डेटा को परसेंट के फॉर्म में सैंपल करो या फिर आप अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू रो सैंपल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट यू वांट. सो यहाँ पर हमने वहीं पर वही चॉइस दी है. If you want to sample your data in rows, then you can choose sample n method. And if you want to choose your data in percentage, then you will go for sample n method while having num underscore train underscore percent variable with yourself or SLD underscore sample with yourself. नाउ जब आप ये चीज चूज कर लोगे कि आपको किस तरीके से अपने डाटा सेट को सैंपल करना है, वी प्रोवाइड यू एन ऑप्शन फॉर सेटिंग ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा. वो आपने सेट किया. उसके बाद फिर आपको साइड बार पे आपका एक प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन को हमने यहाँ पे अपेंड किया है एज चाइल्ड फॉर दैट पेज. उसके बाद हम लोगों ने एक नेक्स्ट बटन और एक HTML बटन जो कि फिनिश बटन है उसको प्रोवाइड कराया है ताकि आप लास्ट पेज पे अपना मॉडल प्लॉट होने के बाद उसको फिनिश कर पाओ. As soon as we press the finish button, आप लोग automatically redirect हो जाओगे over the first page, which will show you the welcome text and next button and of course previous button और next button जिसमें से previous button disabled होगा over page 1. This is how our navigation page R works. So this is the UI for our first page. We have designed the div tag जिसके अंदर हमने हमारा वेलकम टेक्स्ट लिखा है. वेलकम टेक्स्ट इज अंडर H2 tag which says welcome to the model builder application. That is our UI for credit card fraud detection.
Then we have paragraph tag. Then we have used the paragraph tag, under which I have stated that you can build your own model using our UI by just uploading your dataset in 3 simple steps. And those 3 simple steps are: you have to choose or the dataset you want to perform the model building on, and then set the validation settings for your train and test data, and then just go choose the algorithm, that is XGBoost, and start predicting. This is basically just the UI of our first page. Now the UI of our second page. Here we have used division tag. We have made h3 tag used as set the test data and train data sample sizes. This is the page where we will classify the sizes of our train data and test data accordingly. So हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम्स डिवाइड किए हैं, जिसमें से 2 कॉलम्स हैं. एक कॉलम के अंदर हम लोगों ने हमारे सैंपल परसेंटेज मेथड को यूज किया है और एक कॉलम ने हमारे सैंपल रो मेथड को यूज किया है. सो बेसिकली पेज 2 ये है. पेज 3 का यूआई कहता है कि इसके अंदर हमारा जो है XG प्लॉट यूज होगा. तो मैंने पेज 3 को इस तरीके से बिल्ड किया है कि बेसिकली इट हैज एन आईडी ऑफ पेज 3. नाउ उसके पास एक साइड बार पैनल है. साइड बार पैनल में इट इज शोइंग यू दैट यू आर बिल्डिंग योर मॉडल यूजिंग द XG algorithm. Then you have the settings, that is all the parameters for XGBoost, that is its ETA, the rate of learning, gamma, reducing the overfitting, then its max depth, the total depth or the maximum depth that our tree can have, and end rounds, that is iterations. हम वहाँ पे अपने accordingly set कर सकते हैं so that we can get the output as per our choice. Okay. Then this is the server code for page R. What will basically happen, or the main code that will make our first page run. यहाँ पे हमने observe ऑब्जर्व इवेंट को कॉल किया है बेसिकली किसके लिए, हमारे डेटा को टॉगल कराने के लिए. हमने यहाँ पर हमारी फाइल को अपलोड कराया, एंड इफ यूजर डज नॉट अपलोड द फाइल ही कैन यूज आवर इनबिल्ट केकल डेटा. देन वी हैव पेज 2 सर्वर. इसके अंदर भी हमने ऑब्जर्व फंक्शन का यूज करके हमारे डेटा को टॉगल कराया है. वी हैव वैलिडेटेड दैट द यूजर हैज chosen the correct choices as the sampling sizes. अगर वो नहीं सही से चूज करता तो उसको एरर मैसेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा. यही काम हमने पेज 2 पे किया है. नाउ टर्न फॉर पेज 3. सो दिस इज द मेन पेज वेयर आवर मॉडल विल बी बिल्ट. सो इस पेज के अंदर हमने हमारा XGBoost क्रिएट किया है. What I have done is मैंने डेटा को टॉगल कराया है यूजिंग ऑब्जर्व इवेंट फंक्शन. देन आई हैव कॉल्ड my busy indicator server function with app button with a bootstrap class as button go. After pressing that button, my model building will start. So how does it basically work? My XGBoost is shown within using a radio button. We will choose that radio button and start the training of our data. Then we perform testing. Then the model is created. The model is created on the basis of the parameters of the XGBoost model. So basically we have the parameters as objectives. Objective is the point जहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होने वाला है. सिंस हमारी क्लास के अंदर 0 और 1 की वैल्यू है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 0 और 1 के बेसिस पे क्लासीफाई करना, दैट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन. Then I set the ETA, that is the rate of learning. I set the max depth. I set the main child weight. I set the subsample. I set the call sample by tree, and I set the evaluation metrics. Evaluation metrics denotes accuracy. Now I have provided n rounds. I have provided watch list कि मेरे टेस्ट की जो लिस्ट आएगी वो किस बेसिस पे आएगी. देन अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स, मतलब मुझे कम से कम कितने राउंड्स में पर्टिकुलर एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, वो है 40 राउंड्स. मेरे को मेरे 40 राउंड्स के अंदर मेरी सबसे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए. एंड प्रिंट एवरी एन इन 20 राउंड. हर 20 राउंड 40 राउंड में से 20 राउंड पे वो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी को छांटेगा. नाउ आई हैव प्रोवाइडेड द लॉग फाइल फॉर ईच इवैल्यूएशन. वो लॉग फाइल एक टेबल के फॉर्म में हमारे यूआई पे शो होगी. Then I have plotted an ROC curve. That ROC curve will be plotted for the
prediction using XGBoost. Basically ROC curve क्या करती है कि हमारी एक threshold set कर देती है. Above that threshold we have the perfect accuracy, which is not possible in any artificial intelligence model. So we will try to get the maximum accuracy nearest to the perfect accuracy with our model. So here I plot the ROC curve, and then the important variable which has basically performed the task of majorly affecting the ROC curve and the building of my data model. This is the page 3. Then this is the navigation page UI. We have div tag, ID as nav page. I have hidden my lapply function, that is total number of pages which I have. I have hidden that function. I have just shown my 2 buttons, that is previous and next, within this UI page. Here is my server file. Here I denote कि मुझे अपना sample create करना है on the basis of sample n, which will I get either in the form of fraction or either in the form of rows. Now I apply lapply to perform the training and test data sampling. I set the function as input, output, and session. My session will begin, and the source file path, whatever which will be uploaded by user, will be chosen using the server, and the reactive values will be placed. Reactive values are basically those values which react to each and every change for our model. And this is the main UI file for the project. It has just called the navbar function, which has given the title as fraud analysis. The theme I followed is the style CSS. ID is navbar page. Tab panel denotes the tab panel which I have in my UI denotes the create model for the source files, whatever the path will be given by user or chosen by Kaggle Data. And the local, since the environment in which the project will run is local, and its value. And then I have called use Shiny.js, that is I will use the JavaScript which is locally provided by the Shiny UI app. So let's take a look at the running of this project or the UI of this project. So here I run the code. My code is running in the console part. So the plot area will not show this app. A window will pop up showing how this UI works. My global environments are set to Kaggle Data, app CSS, num pages, that is 3, and total number of rows which I have in my basic data set. My app is about to prompt. My app is getting loaded right now. See, you can see the percentage of the pages and the data my console has already uploaded. After this, my app will prompt. Here it prompts my app. Let me small. So here is the output of my UI which I have created. I have used h2 tag for creating this heading. Then I have used a paragraph tag to place this within my UI. I have used the list tag to place these points within my UI. So here is the another heading. Here I have placed a link using the anchor tag within the UI. And here I have provided the options whether to use the inbuilt dataset or to use the dataset which is there in your file system. And the requirements for the classification of this UI is that your CSV file must have a class column upon which the classification will be performed, and any number of columns for that classification can be used. So I begin by using any of the files within my systems. So I would like to upload credit card file. I open this file. My file is being uploaded. As soon as this will get uploaded, here a prompt will occur saying file fully uploaded, and I will be able to click next button since my previous button is disabled for page 1. So next button will appear. So let us wait for my file to get uploaded. So here my file is uploaded completely. Now I would like to move next. अब यहाँ से मैं हमारे पेज नंबर 2 पे जाऊंगी. I press next.
page number 2 must be in the process of being loaded. Here page number 2 is loaded. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं हमारा सैम्पल साइज ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा का रोज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, या फिर आई कैन डिवाइड माई ट्रेन एंड टेस्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. So I would like to divide my train and test data on the basis of percentage. I set the train percentage as 6. So my test data is already and automatically set to 40%. Now I move next, that is the main page, the third page where our algorithm will design the model which we require. Next. Now here is the main page where my model will predict whether the transaction is fraud or not. This will show you whether the transaction is accurate or not and how much accurate it is by using the ROC curve. तो हम यहाँ पे build model करेंगे. We have given the default value as 0.3 of for ETA, min child weight as 100, subsample is 0.8, gamma is 5, max depth is 6, con sample by 0.8 and n rounds as 100. We can shift or slide the input according to us. Suppose I set the ETA as 27, I set gamma as 9, I shift subsample as 0.86 and max depth I make it 9. Call sample train and let us leave other slider inputs the same. So now we will build the model. This is our button go class from the Bootstrap that will enable our system to build the model. Here I go build the model. The processing for my model or the data set which I have given to on which I have to perform fraud detection is getting loaded. Here it loads my data set and is applying the model, that is XGBoost algorithm, over the data set so that it can predict whether my transactions are fraud or legit. Here comes my ROC curve for the data which I have used. See, this is the line where it shows that our data has predicted the perfect value or the perfect accuracy. But predicting a perfect accuracy is not possible for a machine learning algorithm. This curve shows how much accurate our model has predicted the data. XGBoost has predicted the data around, suppose it shows around 9.5 or 95%, 96% data is accuracy of the data. Here this thin gray line depicts the threshold for the data. Here log denotes the total number of iterations it has performed. It has performed total 65 iterations. I can see 65 to all the 65 iterations using these buttons or the next button. See, I have got 90% accuracy for iteration 1, I have got 91% accuracy for iteration 2, I have got 93% accuracy for iteration 3, and similarly I have got best iteration at 25th. I have got the best accuracy at 25th iteration. So the best limit for that node was 25 and the accuracy which I got was 96.94. This is the best accuracy which I have received within my dataset for building this model. So मेरी best accuracy 96.94 की आई है. Let's see how much the data around this has got the accuracy. Page number 3. Data 96.94. I can see this. मेरा best score 96.94 का आ रहा है जो हमारे की वैल्यू में डिनोट हो चुका है. की वैल्यू बेसिकली डिनोट दैट वैल्यू जो हमने हमारे नोड के लिए सिलेक्ट किया है. अब देखो इसके आसपास जितनी भी वैल्यू है सब 96.94 के आसपास की हैं, बल्कि इससे कम ही होंगी. नथिंग कैन बी मोर देन दिस. So this is our best value which we have predicted and upon which we have denoted this ROC curve. Now the important variables for this ROC curve are V14, V10, V17, V12 and V4. This shows if we will build a decision tree for this data set using this model, we will get the nodes as V14, V10, V17, V12 and V4. These are the data sets on which we will be able to classify our transactions as fraud or legit. So here I end up with the whole UI, and the last thing
And the smallest thing for this project is whether our finish button redirects us to the first page or not. Let me try. See, my finish button has redirected to my first page. Now I can repredict my data set using this. Either I can choose the inbuilt data set or I can upload another file from my system to perform this model building again. So here I end up with my UI, and I hope you will try this code yourself. So I would like to end up by saying, since machine learning is growing within the field very vastly and research and developments are continuously being made in this field, so this particular project or many other projects can be predicted more accurately within the coming times. Thank you.